پھیر دیا کرتے تھے کہ اے اسلام، آقا یہ نہیں دیکھتے تھے، آقا یہ نہیں دیکھتے تھے میرے دشمن کا بیٹا ہے، آقا دیکھتے تھے آنے والا کون ہے، کتنے ادب سے حاضر ہوا ہے، لیکن تم نے تو اسلام بتایا نہیں۔ آج میرے نوجوانوں تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آج تم نے اسلام کیسے بتایا ہے دنیا والوں کو؟ آج تم اپنے اسٹیٹسوں پر برہنہ لڑکیاں لگاتے ہو، ننگی لڑکیاں دنیا والوں کو دکھاتے ہو، یہی اسلام ہے، دنیا والوں کو بتاتے ہو یہی اسلام ہے۔ آج تم نے کیا لگایا برہنہ لڑکیاں، اس لیے لوگ اسٹیٹس دیکھیں گے، ویوز آ جائیں گے، وائرل ہو جائے گی ویڈیو۔ میں کہتا ہوں اسٹیٹس لگانے سے کوئی فائدہ چلنے والا نہیں ہے، اگر ساری کائنات تیرا اسٹیٹس دیکھ لے تو بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں تجھے اسٹیٹس ہی لگانا تھا تو مسلح پہ لگا لیتا، قسم خدا کی ساری کائنات لائے گے، کیا باتیں کرتی، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر تیرا کام تجھے ایک لائق کر دیتا تو تیری زندگی بھی سمجھ جاتی ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کا زندہ باد زندہ باد۔ ساری کائنات لائق کر دے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر رب کا ایک لائق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹھو بیٹھو، اللہ تعالیٰ ان کو عمر میں برکت دیتا فرمائے۔ دیکھیے ہوتا وہی ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے۔ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، آواز بلند کر لو، محبت سے بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ تمہیں کربلا والوں کا صدقہ خیرات میں ملے، ذرا اور محبت سے بول دو یا رسول اللہ۔ حضرت قاسم کی جوانی کا صدقہ خیرات میں مل جائے، محبت سے بول دو یا رسول اللہ۔ حضرت اولو محمد کی شہادت کا صدقہ تمہیں خیرات میں ملے، ذرا محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ تم پوری زندگی اسٹیٹس لگاتے رہو برہنہ لڑکیوں کے، پوری کائنات لائک کرتے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک سجدہ اگر تم نے کر دیا رب کی بارگاہ میں اور رب نے ایک بھی لائک دے دیا تو قسم خدا کی زندگی تو سمجھے گی، آخرت پہلے سمجھے۔ سبحان اللہ آج ہم نے اپنے گھروں کے ماحول کو نہیں سنبھالا، آج ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، آج ہم نے اپنے بچوں کو اسلام نہیں دیا، اس کی وجہ یہ ہے آج ہم برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول تو دیکھو، آج ہمارے گھروں کا ماحول تو دیکھو، اللہ اکبر، دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ کوئی مدینے کے تاجدار کی امتی نہیں ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ امریکہ کے ان گھنٹوں کے جو آپ کا ایمان لوٹنے کے لیے پیدا کیے تھے، آج تم نے ان گھنٹوں کا طریقہ اپنا لیا ہے، آج تم نے امریکہ کے کنزالہ لوگوں کے طریقے کو اپنا لیا ہے۔ سوچو تو صحیح، بہن جوان ہے گھر میں، بھائی گھوم رہا ہے گھر میں، بہن جوان ہے گھر میں، بھائی موبائل دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ آج ہماری قوم کا حال یہ ہے، رات بات پر میرے بھائیوں تم فون پہ لگے رہتے ہو، پوری رات بات کیا کرتے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو، پوری رات بات کر رہے ہو، اللہ اکبر، تم کیسے ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، روز کی یہی بات کیا کرتے ہو، اللہ اکبر۔ تم کیا سمجھتے ہو رب تمہیں دیکھتا نہیں ہے؟ گھر والوں سے بچ لو گے، کسی دوسرے کی نظر سے بچ لو گے، تم کیا سمجھتے ہو تمہیں رب نہیں دیکھ رہا ہے؟ اور تم کیا سمجھتے ہو دوسرے کی بہن سے بات کر دوسرے کی بیٹی سے بات کر کے تم بچ جاؤ گے؟ نہیں، آج تم کسی کی بیٹی سے بات کرو گے، کل تمہاری بیٹی سے کوئی بات کرنے تیار ہے، اللہ اکبر۔ ایک بات بتاتا ہوں ابھی جلدی کی، ایک بھائی تھا موبائل چلا رہا تھا، اللہ اکبر، انسٹاگرام پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، انسٹاگرام پہ وائرل ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا، دیکھتا تھا اوپر کر دیتا تھا، دیکھتا تھا اوپر کرتا تھا، دیکھتا تھا اوپر کر دیتا، کرتی ویڈیو تھی، بڑا خوش ہو رہا تھا، اللہ اکبر۔ اچانک اس کی بہن کا ویڈیو اس کے سامنے آ گیا، ننگی بہن کو جب اس نے دیکھا چونک گیا، چونکنے کے بعد اپنے گھر پہ پہنچا، کہنے لگا ماں میری بہن ویڈیو بناتی ہے، بڑا گندی ویڈیو بناتی ہے۔ ماں کہنے لگی میں تو پڑھی لکھی نہیں ہوں، ماں نے اپنا دامن جھاڑ دیا، باپ بھی کہتا ہے ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، کل یہی بیٹی جب بھاگ جاتی ہے تو یہی باپ باتیں بناتا ہے، مولانا کچھ نہیں کر رہی ہے، مولانا کچھ نہیں کر رہے، عالم دین کچھ نہیں کر رہے۔ میں کہتا ہوں عالم دین تیرے گھر پہ اپنے مدرسے کے بچوں کو نہیں بٹھائے گا، ارے تم بیٹیوں کو رکھائے گا، تم بچہ نہیں رکھائے گا، بلکہ ماں رکھائے گی۔ آج جب بیٹی بھاگتی ہے تو اس میں ذمہ دار اس کا بھائی بھی ہوتا ہے، اس کی بہن بھی ذمہ دار، اس کا باپ بھی ذمہ دار، اس کی ماں بھی ذمہ دار۔ پتہ ہے کب یہ رات کو موبائل چلاتی تھی تو تم خوش ہوا کرتی تھی، تم کہتی تھی بیٹی موبائل چلا رہی ہے، خوش ہوا کرتی تھی، باپ بھی خوش ہو رہا تھا۔ کیا تم پوچھ نہیں سکتا تھا بیٹی اتنی رات تک موبائل چلاتی ہو کیا دیکھتی ہو؟ رات کو موبائل ہمیں دے دیا کرو، دن میں دیکھ لیا کرو۔ نہیں ہم تو
मॉडर्न है, हम तो मॉडर्न है, हमारे घर पे बेटियां मॉडर्न है, हम तो मालदार है, गरीब कुछ नहीं जानता है। नहीं नहीं, गरीब सब कुछ जानता है, लेकिन वो अपने रब के आगे अपना सर झुकाता है और कह देता है मौला जब तू इसी में राजी है तो तेरा बंदा भी इसी में राजी है, लेकिन तू तो मॉडर्न हो गया है। जब तू मॉडर्न हो गया है तो छह एक मेरी बेटी तेरे मुंह पे तमाचा मार के चली जाती है, कहती है फिर ये बयान देती है मेरा बाप नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है। अल्लाह अकबर, ये किसको दोष देते हैं? फिर कहते हैं हमारी बेटियों को किसी ने नहीं दिखाया, हमें तो नहीं बताया, आज यही बता देता। अरे तो हमारी बेटी पे इल्जाम लगाते हो। मैं कहता हूँ अगर बेटियों को बर्बाद करने में अगर सबसे ज्यादा किसी का हाथ है तो किसी और का नहीं है, बल्कि माँ का हाथ है, बाप का हाथ है। अगर यही बाप पूछ लेता बेटी क्या करती हो, तो बेटी शर्मसार हो जाती और कहती बाप ये मोबाइल तेरा है, तू रख। तेरी बेटी को जब तुझे पसंद नहीं है तो तेरी बेटी को भी पसंद नहीं है, लेकिन सर पे हमने चढ़ाया। बात चल रही थी, ये आया, आने के बाद कहा माँ मेरी बहन इतनी गंदी वीडियो बनाती है। कहने लगी नहीं मुझे पता नहीं है। जाके देखता है कमरे में, कमरा खोलता है, बहन वीडियो बना रही थी। अल्लाह अकबर, हिल जाता है और जाने के बाद कहता है बहन तू इतनी गंदी वीडियो बनाती है। तो जवाब दिया, पता है उसने क्या जवाब दिया? तुम क्या समझते हो तुम रात भर जो दूसरों की बेटियों से बात करते हो, क्या तुम्हारी बहन किसी से बात नहीं कर सकती? नहीं, मैं भी कर सकती हूँ। अल्लाह अकबर, बताइए सो तो बताइए तो सही, तुम क्या समझते हो तुम बात करोगे तुम्हारी बहन बात नहीं करेगी? नहीं नहीं साहिब, तुम्हारी बहन भी बात करेगी। जब तुम बात करोगे तो तुम्हारी बेटियां भी बात करेगी, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएगी। तुम क्या समझते हो रात पर वीडियो कॉल करने वालों, तुम क्या समझते हो रात को बेटियों के जिस्मों की नुमाइश करने वालों? तुम्हें रब नहीं देख रहा है? नहीं, तुम्हें रब भी देख रहा है। आंखें मैदान महशर में रब के हुजूर के सामने होगी। रब तुम्हें देखने के लिए पैदा किया था। रब कहेगा मैंने आंखें दी थी किस लिए? कुरान पढ़ने के लिए। मैंने तुझे हाथ दिए थे किस लिए? कि मैं तू इनसे वुजू करेगा, नमाज पढ़ेगा। पता तूने इन हाथों से क्या किया? रात पर मोबाइल देखा, रात पर इन आंखों से तूने जिना किए गए। अल्लाह पर कोई जवाब दे सकेगा? नहीं, कोई जवाब नहीं है। हाँ, तुम चाहते हो कि रब के हुजूर में जब हम हाजिर हो तो रब खुश हो जाए, तो एक ही तरीका है, रब की बारगाह में आ जाओ। रब की बारगाह में आने के बाद कह दो मौला मुझसे जो गुनाह हुआ था, मौला मैं जानता हूँ मैं खताकार हूँ, मौला मैं जानता हूँ मैं सियाकार हूँ, मौला मैं जानता हूँ बदकार हूँ, लेकिन तेरी रहमत का ही तो तलबकार हूँ। मौला तू मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। तू कसम खुदा कि तेरा रब इतना करीम है, तेरी एक आंसू से रब तुझे माफ फरमा देगा। तो दुआ करके तू देख, तू उसकी बारगाह में तौबा करके देख, अल्लाह तुझे माफ फरमाने वाला है। तू अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले। मुसलमानों अपने घरों के माहौल को सुधार लो। तुम्हारी वो बच्चियां जो कनीज़ फातिमा हुआ करती थी, आज तो चौराहों की जीनत पर नहीं है। वो बच्चियां जो कनीज़ जिनसे इस्लाम चमकेगा, वो बच्चियां जिनको इस्लाम का मुस्तकबिल है, जिनसे इस्लाम पहचाना जाएगा, आज वही बच्चियां बताइए तो सही किसकी बच्चियां हैं? नाम क्या है? फातिमा। नाम क्या है? तैयबा। नाम क्या है? ताहिरा। नाम क्या है? अब्दुल्ला की बेटी। नाम क्या है? फलाने खां की बेटी। लेकिन उसके काम देखो, अल्लाह अकबर, चौराहों की जीनत बनी बैठी है, चौराहों पर अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है। मैं कहता हूँ बेटी तू क्या चाहती है ये दुनिया को दिखाना? तू क्या समझती है कि बड़े बाप की औलाद है? तू क्या समझती है कि तेरा बाप बहुत मालदार है? तू क्या समझती है कि तेरे भाई के पास पैसा है? नहीं नहीं, तू क्या समझती है तेरे पास बहुत पैसा है? नहीं नहीं, सबसे पैसे वाला अगर कोई था इस दुनिया में, अगर सबसे मालदार कोई था इस दुनिया में, वही था जिसको अपने मालिक के कायनात बनाकर भेजा था, मालिक के कायनात बनाकर भेजा था। सुनो, उसकी बेटी का पर्दा क्या था? उसकी बेटी का पर्दा क्या था? फातिमा का पर्दा क्या था? सुनो, फातिमा के पर्दा क्या था? आज अपने अपने कहीं से फातिमा कहलाने वाली हो, तुमने अपने जिस्म की नुमाइश करना शुरू कर दी। इसी वजह से आज तुम्हारे घर में ना कोई सलामती नहीं भी आता है, ना आज तुम्हारे घर में कोई वॉश पैदा हो रहा है, ना आज तुम्हारे घर में कोई आला हज़रत पैदा हो रहा है। नहीं होने वाला है।
क्योंकि जब तक माँ सजदा करती थी तो बेटा सलाहुद्दीन पैदा हुआ करता था, जब माँ सजदा करती थी तो बेटा अब्दुल कादिर पैदा होता था, जब माँ सजदा करती थी खंजर में तो बेटा साबरे पाक हुआ करता था। लेकिन आज माँ ने सजदा छोड़ा, बेटी चौराहों पे आ गई, माँ ने सजदा छोड़ा, बेटी जिस्म की नुमाइश करने लगी। सुनो फातिमा का पर्दा क्या था? फातिमा का पर्दा ये था, एक मर्तबा आका ने देखा, आका फरमाते फातिमा तुमने चांद देखा? क्या देखा? फातिमा से कहते हैं चांद देखा? फातिमा क्या कहती है? बाबा मैंने चांद नहीं देखा, बाबा मैंने चांद नहीं देखा। आका फरमाते फातिमा चांद क्यों नहीं देखा? सबों ने चांद देखा लेकिन तुमने चांद नहीं देखा। फातिमा कहती है बाबा जब सबों ने देखा तभी तो फातिमा ने चांद नहीं देखा। यानी फातिमा कहना चाहती थी आका बाबा जिस चांद को गैर महरम की नजर लग जाए उस चांद को फातिमा देखना दोबारा नहीं है। आज तो हमारे घरों का पर्दा अल्लाह की बना, देखो तो उस पर्दे को भी पर्दे की जरूरत पड़ जाती है। भाई कहने तैयार नहीं, बहन तू 1500 का पर्दा लाई थी अच्छा खासा, फिर उससे टैग क्यों कराया? ये भाई भी बड़ा अच्छा देखता है, जब देखता है बहन कसी हुई है अच्छी लग रही है तो समझता है बहुत अच्छी है। मैं कहता हूँ इस गुनाह का जिम्मेदार अगर सबसे ज्यादा कोई है तो ये भाई है। अगर ये भाई अपनी बहन पे कसौटी करते, बहन ये क्या तू अपना जिस्म दिखाती फिरती है, तो बहन की औकात है कि बाहर निकल जाए, माँ की औकात है कि बाहर निकल जाए बिना पर्दे के। ये भाई जब एक टाइम बिना मर्जी का खाना नहीं खा सकता, अगर नमक तेज हो जाए तो खाना नहीं खा सकता, अगर यही भाई कहते ए बहन मैं जब तक खाना नहीं खाऊंगा तब तक तू पर्दा नहीं करेगी, तो कसम खुदा की बहन अपने भाई से इतना प्यार करती है, अपने भाई से इतना प्यार करती है कि बहनें ही तो होती जो भाइयों की लाडली हुआ करती है। जब ये भाई को जब खाना खाती हुई नहीं देखेगी ना तो यही कहेगी भाई तू खाना खा ले, आज से तेरी बहन जो है पर्दा करने तैयार नहीं है। सोचो जब कि घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, जब तुम्हारी बहनें नमाज पढ़ेगी, जब माएँ नमाज पढ़ेंगी, जब बाप नमाज पढ़ेंगे तो एक इस्लाम का गुलशन खिलेगा, ये इस्लाम का ऐसा गुलशन खिलेगा तो सारी कायनात में छा जाएगा। फिर आप देखेंगे इस्लाम का अलग रंग होगा, इस्लाम का अलग धन होगा, इस्लाम अच्छी तरीके से फैलेगा, इस्लाम का गुलशन हमारी बेटियां ही तो है। फातिमा का पर्दा तो देखो, एक मर्तबा आका चल रही थे आगे आगे, उसके पीछे चलती थी फातिमा, फातिमा के पीछे पीछे चल रहे थे हजरत अली। क्या दिखा रहे थे दुनिया वालों को? ये दुनिया वालों देखो जब आका कदम रखता है उसके बाद उसी कदम पे हजरत फातिमा अपना कदम रख देती है, आका के निशान पे फातिमा कदम रख देती है, उसके बाद उसी निशान पे हजरत अली कदम रख देते हैं ताकि दुनिया वालों को हजरत फातिमा के कदम की आहट भी महसूस ना हो। अल्लाह अकबर। लेकिन हमारे यहाँ का पर्दा तो देखो, हमारे घरों का पर्दा तो देखो, आज उस पर्दे को पर्दे की जरूरत पड़ने लगी। आज हमारे इस्लाम को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है तो बेपर्दगी से पहुंचा है, बेपर्दगी से। और यही बेपर्दगी तुम जानते हो तुम्हें कहां तक ले गई? आज 10 लाख 2014 से लेकर आज तक 10 लाख बेटियों ने इस्लाम छोड़ दिया है। इस्लाम खैर मजहब उन्होंने बना लिया है, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सिर्फ मौलवी नहीं है, इसका जिम्मेदार सिर्फ गांव का इमाम नहीं है, बल्कि हर फर्द जिम्मेदार है। कल क़यामत के दिन तुम्हारा किरमान पकड़ के तुमसे पूछा जाएगा बता तू रोक सकता था क्यों नहीं रोका, बता तू कह सकता था क्यों नहीं कहा। याद रखो मुसलमानों, वो दिन जरूर आएगा कि जब तुमसे तुम्हारा इस्लाम छीन लिया जाएगा। तुम क्या समझते हो तुम बड़े पावरफुल हो? नहीं, कोई पावरफुल नहीं हो। रब फरमाता है जब तुम अपने रब को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर एक ऐसा बादशाह मुसल्लत कर दूंगा कि तुम्हारा जीना हराम कर देगा। तुमने अपने दामन को अपने रब के दामन से अपने दामन को छुड़ाया, अपने रब के दामन से अपने हाथ को छुड़ाया, रब के महबूब के दामन से अपने दामन को छुड़ाया।
तो कसम खुदा की आज तुम देख रहे हो तुम्हारा हाल क्या हो गया है, आज तुम्हारा हाल क्या हो गया है। कसम खुदा की हम चाहते हैं अगर तुम्हारा हाल, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा हाल अच्छा हो जाए, तुम फिर से फलो फूलो, फिर से तुम्हारा इस्लाम का गुलशन आबाद हो जाए, तो आज वक्त है नमाज़ पढ़ने की, आज वक्त है इबादतें करने की, आज वक्त है इमाम की इज्जत करने की। आज इमामों की इज्जत करने तैयार नहीं हो, आज कोई मौलाना आ जाए उसकी बात सुनने तैयार नहीं हो। ये वही मौलाना है जिनके बारे में आका ने फरमाया ये मेरे वारिस हैं, तुम वारिस की बात सुनने तैयार नहीं हो। आज गरीब नवाज फरमाते हैं आखिर ज़माना जो होगा उसमें मौलाना लोगों की इज्जत नहीं होगी, आलिमों की इज्जत नहीं होगी। आज आलिमों की इज्जत नहीं है। यार मुसलमानों तुम्हें हो क्या गया है, यार मुसलमानों तुम क्या समझते हो कि तुम दुनिया में रहने वाले हो? नहीं, तुम्हारा हाल तो ये था जब तुम दुनिया में आते थे तो अपने रब के हुजूर में सर को झुकाते थे, जब इस दुनिया से जाते थे तो रब के हुजूर में तुम्हारा सर झुका हुआ होता था। आज तुम्हारा हाल ये है यार, तुम देखो आज मुसलमान है, आज चौराहों की सीरत बराबर आ गए, आज मुसलमान है नाच रहा है, आज मुसलमान है अय्याशियां कर रहा है, शराब के एक्टों पे मुसलमान, अय्याशियों के एक्टों पे मुसलमान। आज तुम्हारी पहचान सिर्फ अय्याशियों से हो रही है, आज तुम्हारी पहचान गद्दारों से हो रही है, आज तुम्हारी पहचान मक्कारों से हो रही है। आज भी तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें अच्छा जाने, आज भी तुम चाहते हो लोग तुम्हें अच्छा जाने, तो कसम खुदा की मुस्तफा के दामन से वाबस्ता हो जाओ, कुरान को सीने से लगा लो, मुस्तफा की सुन्नत पर अमल कर लो, सारी कायनात तुम्हारे कदम में हो जाएगी। और तुमने जब अपना सर रब के हुजूर में झुका दिया तो कसम खुदा की रब राजी हो जाएगा, और जिससे रब राजी हो जाएगा तो कसम खुदा की तू इस दुनिया में भी कामयाब, मैदान महशर में भी कामयाब हो जाएगा। मेरी तबीयत आज अलीम थी, मैं आपसे गुफ्तगू और करता, लेकिन आज मैं रात में सोया भी नहीं था, इतनी तेज खांसी थी, लेकिन अल्लाह की मर्जी कि मैं आपके सामने इतनी देर बोला।